V4U रेडियो पर आप सुन रहे हैं कौन सर डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव के साथ। हाय एवरीवन, आई एम योर होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव। आप लोगों ने बहुत ही लाइक किया वर्तिका के पॉडकास्ट को, जिसने लास्ट टाइम बात की थी सम साइकोलॉजिकल रेमेडीज और ये कैसे आपको इफ़ेक्ट करते हैं। तो मैं वर्तिका के साथ पिछले 1 महीने से हूँ और मैं उसको देख रही हूँ कि वो किचन में बहुत ज़्यादा रहती है। सो आई थॉट कि आई शुड आस्क कि ये उसका शौक है या उसकी कोई एक्सरसाइज है, क्योंकि कहीं मैंने पढ़ा था स्ट्रेस बस्टर भी करके एक चीज़ होती है। एंड हमारा जैसे सबके पास अपने अपने एक रीजंस होते हैं, अपने पास सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर मी मे बी इट्स म्यूजिक, फॉर माई भाभी मे बी इट्स डांस, फॉर माई ब्रदर मे बी इट्स मोबाइल और समथिंग लाइक दैट। बट लेट मी आस्क फॉर वर्तिका व्हाट इज इट। सो वर्तिका, आई हैव सीन मेनी टाइम्स दैट यू आर इन किचन। जब मैं रात में कैमरे में देखती हूँ तुम किचन में जाती हो और तुम कुकिंग करती हो, तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू लव ईटिंग, यू लव कुकिंग, but is there any other reason for that? I think I love cooking because my father loves cooking, and I have always grown up, and I've always grown up with my family, around my mother and my father, and I'm very close to them. So whenever my father would even enter the kitchen, which is not rare but uncommon, he would always indulge the entire family ki yahan chalo, let's cook this, let's cook that, and he would always make us do various chores that were surrounded around the topic of cooking, like chopping the vegetables, washing the dishes. So from that itself I developed the liking towards cooking, and now it is a stress buster, a hobby, and just one of the favorite things to do. Okay, so stress buster अगर मैं particular उस topic पे आऊँ, then what will you like to say ki okay, no, this is not my stress buster, this is my stress buster, or maybe cooking or something? Cooking could be taken as a stress buster. However, I believe that when I'm in stress, music, isolation, as well as writing things, that is my best stress buster. Okay, isolation because whenever I'm stressed, rather than having people always talk to me, it can be not a bit but very overwhelming, and therefore having that sense of isolation, having that time with yourself where it is just silence and you can actually hear your thoughts, comprehend them, that gives me a lot of time for self analysis and thinking why. तो जैसे ये सेल्फ एनालिसिस करते हैं आप किसी चीज़ से नाराज़ हुए या कोई बात आपको हर्ट हुई और आप आइसोलेशन में गए और आपने सेल्फ एनालिसिस किया, उसके बाद क्या थॉट्स आते हैं? डेफिनेटली पॉजिटिव आते होंगे, तभी आप हंसते हुए कमरे से बाहर निकलते हैं। तो कैसे असेस करते हैं कि मैं सही थी या मैं गलत थी? It is mostly because, again, teenagers, hormones, bad decisions. That is the bottom line in every single argument that goes on within a household with a teenager. So it is many a times that I have fought with my parents and I lock myself in my room and I'm like, I hate them, I'm going to run away from here, I'm going to pack my bags, and that has been a habit since childhood. And I still remember one incident where my father was like, he opened the door and he was like, you want to go? Get out. I can imagine. So from that day onwards, like, I would always isolate myself and I would just think, why did it have to come to this? Like, why am I even isolating myself? Why did I have to shout, and why did they have to shout? And then I always understand that they are protective in their own way. They have their own reasons to shout at me. They always want the best for me. Right. And that just makes me understand that outside of the heat of the moment, they do care for me. So that is why isolation gives me a larger perspective, a third person perspective as well. तो एक हो गया आपका आइसोलेशन एंड इट्स लाइक वेल, आपका एनालिसिस भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपके रिजल्ट आ जाते हैं पॉजिटिव, क्योंकि पेरेंट हैं, मतलब अब ये ज्ञान तो आपको सभी को ही देता है कि माँ बाप बच्चों का भला सोचते हैं, लेकिन अगर बच्चे इस चीज़ को खुद अंडरस्टैंड करें तब इसका फ़ायदा है. You can also ask my mummy. She has I have gone into the room screaming and crying, and just half an hour later I'll come back and I'll be like, क्या कर रहे हो? So आप सॉरी बोलते हैं अपनी मम्मा को?
controversial topic. V4U रेडियो पर आप सुन रहे हैं कौन इस डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव के साथ। तो सॉरी बोलना क्या लगता है, बहुत ईगो वाली बात हो जाती है? सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टीम, मतलब मैं सॉरी बोलूंगी तो Not really, because while in isolation, I think कि हाँ, my parents were right to scream at me, and that they care about me. It does not necessarily justify them screaming at me. So somewhere down the lane, they were also wrong, and I am of that belief that tit for tat. So therefore, I am always like कि, but they were also wrong. Why should I be the one to apologize? डोंट यू थिंक कि ये जो रूम लॉक करना है, स्क्रीमिंग, ये थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेलिंग भी है? Maybe. चलो छोड़ो, ये टॉपिक पे हम बात नहीं करते, हम सेकंड पे आते हैं, जो कि आपने 3 बातें बोली थी। राइटिंग। Oh, I love writing. ओके, एंड व्हाट यू लव टू राइट? I have always seen as fiction to be my escape. ओके, Say it from say the heat of, because there have been numerous times that I'm locked in my room and straight up I just reach for either my Kindle or the physical books that I have, राइट, and I read on them. So like it's a momentary distraction. फाइन। So I love reading books, mostly fictional, and तो बुक पढ़ने से भी आपका स्ट्रेस यू फील किए? हाँ. ओके, एंड व्हाट्स अबाउट कुकिंग? कुकिंग मैंने इसलिए बोला, एंड म्यूजिक ऑल्सो, अभी 2 टॉपिक बचे। तो म्यूजिक तो मैं ऐसे बोलूंगी वर्तिका, बिकॉज आई हैव हर्ड यू मेनी टाइम्स, सो एंड आई बिलीव यू सिंग ओनली वेस्टर्न सॉन्ग्स। mostly. राइट, मोस्टली मैंने वही सुने हैं फिलहाल पिछले कुछ दिनों में। तो वो मैं मानती हूँ क्योंकि वो मेरा भी स्ट्रेस बस्टर है। तो ये ऐसे ही बोर होते हो तो गाते हो या परेशान होते हो तो गाते हो? I can sing any single time. I can sing in any mood. If I want to cry, I'll sing. If I'm angry, I will scream out songs. Because I have heard every single genre of music. Okay, that's great. And who's your favorite? Never asked that to a music lover. All are. Not all. There are definitely some likes. Mm-hmm. I am mostly a pop listener. Mm-hmm. Pop indie. Mm-hmm. So anyone who comes in that genre. Okay, and cooking. हाँ. Because you love eating, you love cooking, और घर का माहौल ऐसा था जिस वजह से आप कुकिंग करते थे। ओके, अगर आपके पास आपका ब्रदर आता है who is 6 years younger, 7 years younger, ओके, तो वो अगर आपको ये बोलता है कि किसी बात से अपसेट होता है, आप उसको क्या सजेशंस देंगी उसके स्ट्रेस को? कैसे, पहले तो आप उसको कैसे कैलकुलेट करेंगी? बिकॉज 7 साल के बच्चे को क्या स्ट्रेस, ये एक कॉमन सा एक जनरल एक बात है कि भाई तुमको क्या टेंशन। सही बात, उसको तो कोई टेंशन है नहीं, मैंने देखा हुआ है। बट चलो आगे से आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद अगर उसको लगता है कि पढ़ाई का प्रेशर है या फैमिली या पापा ट्यूशन लगा रहे हैं या कोई रोक रहा है या मतलब समथिंग लाइक दैट, तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगी? अभी जैसे रिसेंटली, आई वोंट नेम द सिचुएशन, बट वो आया था घर पे एंड ही वाज क्राइंग बिकॉज सम पीपल हैड सेड थिंग्स टू हिम. सो उसमें तो आई वाज लाइक, आई हैड जस्ट वोकन अप एंड ही वाज लाइक एंड आई वाज लाइक क्या हो गया? And then he told me that there were these people, they said this to me, and I was like, first of all, you stop crying. And then I talked to the parents of those children as well who had spoken to them. So, spoken to him that way. So that eased out that situation. However, there have been times when he has come up to me and he is like, दीदी मतलब वो जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है मेरा, कल I have this test tomorrow and I have not studied. ये हुआ है 2-3 बार. So मैंने उस टाइम बस उससे यही बोला है कि सबसे पहले तो तुम अभी अपनी बुक उठा कर पढ़ो, एंड देन नेक्स्ट है कि when I have learned this thing that if someone is stressed at that moment, you should not scream at them. That only overwhelms them and that would only result in additional hatred towards you. True. So therefore I'm like कि at that time I'm thinking of a solution, and when the heat of the moment eases out, then is the time that I lecture him या फिर I'm screaming. Okay, एक टेक्निकल सवाल, क्योंकि आप साइकोलॉजी आपका टॉपिक है, सब्जेक्ट है, इसमें आप चाइल्ड साइकोलॉजी को कैसे रिलेट करेंगी?
I have not yet studied child psychology, so that is Okay. a little bit out of my. स्ट्रेस पे कैसे करेंगे? Can you reframe? Psychology कि okay, what will be my psychology, like how it is helping as a counselor. So first of all, I know you're very young for that, you have not studied well, but anyway, because I have seen many times that you're looking after your younger brother, so I just want to know maybe something क्या किसको क्लिक कर जाए और किसी और को हेल्प कर जाए. पॉडकास्ट का हमारा पर्पस यही होता है. हाँ, तो सबसे पहले तो द थिंग इज कि अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है, वन थिंग शुड नॉट बी टू इनवैलिडेट देयर स्ट्रेस कि तुम्हें स्ट्रेस क्यों हो रहा है. वन थिंग शुड बी टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है. एक्सेप्ट. हाँ, एक्सेप्टिंग इट एंड आइडेंटिफाइंग इट. सही बोला. एंड फिर जब आइडेंटिफाई हो जाए, फॉर एग्जाम्पल गिव मी अ प्रॉम्प्ट, हाउ कैन वन हैव स्ट्रेस. Okay, suppose I am 10 years old and I'm just crying all the times and my teachers are always giving red marks to me. ठीक है, I'm crying because I'm scared to go to school. If I'll go to school तो वहाँ पे फिर से कोई डांट वाट पड़ेगी. So ये चीज़ बड़ी नॉर्मल सी सिचुएशन है और बहुत ही कॉमन सिचुएशन है. इसमें स्ट्रेस या छोटा बच्चा है या टेंशन, ये सारी बातें नहीं आती, पर सारे एलिमेंट्स हैं इसमें. ठीक है, सारे एलिमेंट्स हैं. ये सिचुएशन है तो इसकी क्या काउंसलिंग होगी? आप बच्चे को बोलेंगे कि नहीं सुधर जाओ, ये माँ उसको 2 थप्पड़ मारेगी, जाओ ट्यूशन करो. सो सबसे पहले तो द थिंग वुड बी टू कंसोल द चाइल्ड कि शांत हो जाओ एंड टू लेट देम फ्रीली टू लेट देम फ्रीली टॉक देयर हार्ट आउट. उसे जो बोलना आप उसे वो बोलने दो कि आखिर उसको क्या ट्रबल दे रहा है, उसको किस चीज़ में हेल्प चाहिए. क्योंकि व्हेन अ पर्सन इज स्पीकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, तब वो आपको बता भी रहा है कि सिर्फ प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको ये भी बता रहा है कि आखिर उसे किस चीज़ के लिए सोल्यूशन चाहिए. जैसे मैं बोल रही हूँ कि काम बहुत ज़्यादा, मेरे को ये नहीं पता कि मुझे कैसे करना है. सो आई एम ऑल्सो आस्किंग यू कि टेल मी अ सोल्यूशन ऑफ हाउ एम आई सपोज टू कंप्लीट दिस टास्क, नॉट ओनली कि मेरे से काम नहीं हो रहा है. तो उस हिसाब से इफ़ वी सी दिस 10-year-old वाले बच्चे का केस, तो वो भी बताएगा कि मेरी टीचर्स मेरे ऊपर चिल्ला रही हैं, मुझे पता भी नहीं है कि आखिर मैं कैसे करूँ ये. सो कैसे करूँ ये, वी कैन ऑलवेज हेल्प दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड कि आखिर वो कैसे करे वो चीज़. उस टाइम पे उसको कंसोल करना, उसको शांत करना, दैट शुड बी द मेन प्रायोरिटी. सो दैट अगर आप कोई ऐसे सीरियस कॉन्वर्सेशन कर रहे हो उससे 2-3 मिनट के बाद, तो उस टाइम पे वो ज़्यादा ओवरवेल्म ना हो जाए बच्चा. सो डोंट यू थिंक कि पेरेंट्स की भी काउंसलिंग होनी चाहिए? दैट इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़. क्योंकि V4U रेडियो पर आप सुन रहे हैं कौन सर डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव के साथ. कई सारे जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों की काउंसलिंग कराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों के अंदर कुछ गलत है. बट बच्चा जो है वो तो अभी भी जस्ट कुछ साल पहले ही बॉर्न हुआ है ना, एंड वो जब से बॉर्न हुआ है वो तब से आपके साथ है. तो अगर वो आपके साथ है एंड आपको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, सो ऑब्वियस सी बात है कि उसको वो वाली प्रॉब्लम्स आपसे मिली होंगी. एंड दैट वुड मीन कि आपको भी काउंसलिंग चाहिए ताकि आप उस वाले बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप खुद को भी सॉल्व कर सके. कैन यू टेल मी वन एग्जाम्पल या वन रेमेडी हाउ टू डू दिस, बिकॉज दिस इज वेरी ट्रिकी. यू आर राइट. ठीक है, क्योंकि घर में ही है, घर ही से हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ एक चीज़ या कोई एक इंसिडेंट होगा जिसने तुम्हारे माइंड पे वो डाल दिया होगा इम्पैक्ट, एंड इट इज़ कंटिन्यू. वो चला जाता है 18 साल के बाद. दिस इज़ व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम पीपल. बट स्टिल उसका कोई सोल्यूशन है कि मतलब आपको लगता है कि दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन, लाइक टू रियलाइज पेरेंट्स ऑल्सो कि तुम इस पॉइंट पे गलत हो. Underrated but very crucial point, family therapy. Family therapy. Okay. And It is often looked down on. And what? Give one example of that. Like क्या किया जा सकता है? One solution. This like एक family की therapy के लिए, what is therapy? Talking to someone and finding out solutions for your problems. By कई सारे लोगों के लिए clinical therapist. However, Clinical तो extreme हो हाँ, गया. clinical extreme हो गया. बट थेरेपी, आप अगर किसी भी चीज़ के लिए आप एक थेरेप्यूटिक सोल्यूशन लो, सो दैट मीन्स दैट इन्वॉल्व्स कामनेस. आप अपनी फैमिली को बैठा कर उनसे एकदम काम माइंड के साथ, जहाँ पे किसी का ईगो नहीं आ रहा है, कोई चिल्ला नहीं रहा है, किसी के भी दिल पे नहीं कोई ऐसे चोट आ रही है, यू आर जस्ट हियरिंग द अदर पर्सन आउट. आप चाहिए आप उस थेरेपी सेशन के लिए आप उस
आप उस इंसान को एक स्ट्रेंजर मान लो, डू नॉट थिंक ऑफ देम एज ए फैमिली मेम्बर्स, जस्ट थिंक ऑफ देम एज से अ स्ट्रेंजर. So you're just listening to what they're saying. You're not judging them. क्योंकि फैमिली में ऐसा बहुत बार होता है कि अगर कोई बच्चा है जो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर रहा है, जज करते हैं, तो फिर जज करते हैं. एंड मेनी अ टाइम्स पेरेंट्स आर लाइक कि ऐसा तो तुम्हें हो ही नहीं सकता, लाइक दिस इज नॉट व्हाट कुड हैव हैपेंड टू यू, हम लोगों ने ऐसे तुम्हें कभी होने ही नहीं दिया. एंड इसीलिए पेरेंट्स आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट. एंड उसकी वजह से द चाइल्ड who wanted to feel heard at that moment feels unheard and misunderstood as well. So, इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है बात करना. इसका मतलब कि मैंने जितने भी किए हैं वर्तिका स्ट्रेस रिलेटेड या मेंटल हेल्थ वेलनेस के प्रोग्राम्स पे जितने भी इंटरव्यू किए हैं, 99.9% इंटरव्यूज में बोला गया बात करना, अपनी सारी चीज़ों को निकाल देना. बट उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो पूरा माहौल है वो भी उसको पेशेंस के साथ सुने. तो सपोज अगर एक एलिमेंट, दैट्स ओके, अगर एक एलिमेंट नहीं सुन रहा है ध्यान से या दो एलिमेंट नहीं सुन रहे, पर अगर दो एलिमेंट भी सुन रहे हैं तो क्या उनके बीच में इतनी बात हो जानी चाहिए कि यू कैन स्पीक योर हार्ट, लाइक ट्रांसपेरेंसी, कि आप पूरा किसी के साथ ओपन बुक की तरह हैं. तो डू यू थिंक कि होता है? नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर हम लोग जैसे स्पेसिफिकली फैमिली थेरेपी के बारे में बात करें, तो अगर दो लोग नहीं भी सुन रहे, देन ऑल्सो दे आर अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, दे आर इमोशनली कनेक्टेड टू यू, यू आर गोइंग टू हैव टू लिव विद देम फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. अगर वो अंडरस्टैंड नहीं करें, दे हैव क्रॉस द टाइम, इवन देन ओनली, तब तो अगेन दैट जस्ट मीन्स दैट यू कैन नेवर एवर बी इमोशनल. V4U रेडियो पर आप सुन रहे हैं कौन इस डॉक्टर वंदना श्रीवास्तव के साथ. vulnerable to them. Yes, this is the solution. That you have to be very emotionally very Connected strong, and connected, vulnerable. but हाँ, लेकिन बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा. तो चलो, एक दोस्त भी कहते हैं अगर मिल जाता है लाइफ में तो बहुत काफ़ी होता है आपकी लाइफ को अच्छे से संभालने के लिए और चलाने के लिए. और मेरी भी लाइफ में अगर बोलोगे तो जैसे जनरली लोगों की मदर होती हैं, कुछ की बेस्ट फ्रेंड्स भी होती हैं, एक दो होते हैं, कुछ के बॉयफ्रेंड्स होते हैं आगे जाके, दैट आफ्टर 20-25 ईयर्स. ठीक है, बट इन योर केस मुझे नहीं पता कौन है, एंड आई डोंट वांट टू आस्क, क्योंकि मुझे पता है ये बड़ा ही ट्रिकी क्वेश्चन हो जाता है, आप किसको सबसे ज़्यादा क्लोज मानते हैं. पर मुझे लगता है अगर इफ़ यू हैव वन सच फ्रेंड और शोल्डर, आई थिंक दिस इज द होल सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम. डू यू एग्री विद दिस? Obviously, but many times, even in my case, it's not just one person that you need to be heard. In a world of 8 billion people, where you want to feel heard, where you want to feel like you can express yourself, one person is obviously not enough. वो तो 0.000 something percent है. देखो वर्तिका, अगर एक आदमी, बाकी देखो दुनिया को तो आपको सुनाना ही नहीं है, समझाना ही नहीं है, वो तो आपकी पर्सनालिटी जो बोलेगी वो वही सुनेंगे. दोज आर कॉल्ड नैरेटिव्स. वो जो आप बनाएंगी वो वही जाएगा. लेकिन आपकी जो इमोशनल, जो मुझे समझ में आई आपसे बात करके, जो आपकी इमोशनल जहाँ पे आप लूज़ करते हैं अपने आप को, वहाँ अगर एक भी आपको बंदा, मेरे हिसाब से जो हम दोनों की बात हुई है, अगर मिलता है जिसको हम अपनी सारे दिल की बात करते हैं और हर्ट है और जो आपको जज ना करे, यू सेड दैट, आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो अ स्मॉल थेरेपी. फैमिली थेरेपी इज़ वेरी गुड आइडिया, बट ये मेरे ख्याल से इंडिया में बहुत मुश्किल है. Exactly what I said. Underrated but crucial. इंडिया में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया में जिस तरीके से बड़े हुए, हर जनरेशन के बीच में एक बहुत मेजर जनरेशन गैप दिखता है. हाँ. मतलब मैं मेरे फादर से अपने आप को कंपेयर करूं और मैं मेरे बच्चों को अपने आप से कंपेयर करूं, तो मुझे लगता है आई एम द मोस्ट लाइक ट्रांजिट में सबसे ख़राब सिचुएशन मेरी में. उनकी भी सुनती हूँ, उनकी भी सुनती हूँ. ज़बरदस्ती मैं अपने आप को शो करूँगी कि ओह माय गॉड, आई एम विक्टिम कार्ड प्ले करूँगी. ठीक है, वो नेक्स्ट वाला भी करेगा कुछ सालों के बाद. तो ये एस्केपिज्म होता है. बट एनीवेज मुझे समझ में आया कि कुछ बातें आपसे मैंने ली बढ़िया इंटरेस्टिंग. एक तो राइटिंग इज़ अ वेरी गुड थिंग, रीडिंग इज़ वेरी गुड, प्लस अगर आप सारे कैलकुलेशन करके पॉजिटिव आउटकम के साथ आते हैं, वेयर यू रियलाइज़ कि नहीं, दे आर योर पेरेंट्स और मे बी दे आर डूइंग फॉर यू, क्योंकि आपने अपने भाई को भी समझाने के लिए एज अ पेरेंट आपने बात की है. ओके, लास्ट आप बताओ, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे आपकी उम्र के बच्चों को? वर्तिका इज जस्ट 17 years old. I would say कि 17 years old पे
there is a lot of stress. Of course, Career का, studies का, and at some point family का भी, because you're entering your adulthood and उसकी वजह से you're entering a new phase of your life. तो इस टाइम पे जो स्ट्रेस होता है, ऑब्वियसली ये सारे लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, बट देर आर मेनी पीपल आउट देयर जो 18 होने के बाद जस्ट टू मूव टू देयर कॉलेजेस वो अपनी फैमिली से अलग हो जाएंगे. दे विल मूव सम अदर प्लेस. बहुत बड़ा चेंज होता है. सो इसलिए आई वुड से कि अभी नॉट प्राइमरीली एट एन इमोशनल लेवल, मतलब इमोशनल लेवल होना चाहिए. हाउएवर इफ योर फैमिली इज नॉट योर सेफ स्पेस, तब भी यू नीड टू एटलीस्ट स्पेंड टाइम विद देम, बिकॉज जब आप मूव आउट कर जाओगे यू नेवर नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. एंड इसीलिए आई वुड से कि स्पेंड टाइम विद द फैमिली, एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी फाइंड a good stress buster for yourself. Okay. क्योंकि life is filled with hardships, and having a stress buster is basically your one way to happiness. Okay. थैंक यू वेरी मच वर्तिका. एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि वर्तिका ने अच्छी बात कही है, एंड आपके लिए भी वर्तिका, फैमिली मतलब ये ज्ञान हर कोई देता है, सो डोंट टेक इट कि आई एम ऑल्सो गिविंग यू ज्ञान, बट जितना सपोर्ट फैमिली करती है, क्योंकि फैमिली कुछ आपसे एक्सपेक्ट नहीं करती है कि आप उनको कुछ रिटर्न में देंगे. दे जस्ट वांट टू सी यू हैप्पी. आई थिंक अगर आप प्रायोरिटी पूछेंगे अपनी मदर से, अपने फादर से कि हैप्पीनेस, करियर, मनी किसको टॉप पे रखोगे, यू विल गेट द आंसर कि वो क्या बोलेंगे, एंड दैट विल गिव यू द ऑल द मतलब आंसर्स कि ठीक है ये सारी चीज़ें बोल रहे हैं, दैट इज सेकेंडरी, बट उनकी मेन चीज़ ये है कि तुम खुश रहो, काम रहो, बाकी तो चीज़ें होती रहती हैं. सो थैंक यू एवरीबडी. दिस इज वर्तिका. वापस से मेरे पास आई, दोबारा हमने एक साथ इंटरव्यू किया, और हम आपसे फिर मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बने रहिए V4U रेडियो पर.